Our next topic is geometrical probability. So, for 1D, probability will be equal to favorable length divided by total length. Suppose there is a length that is it is in 1D and we have to take a points on this line and we have to find the probability that वो वाला जो point है वो इस region में होना चाहिए. तो we can see that if this is the favorable length and this is the total length, then the probability that point lies on this region is small l upon capital L. So this will be for 1D. Similarly for 2D, probability will be equal to favorable area divided by total area. This means suppose there is a area like this and this is the total area such as capital A, and suppose there is another area that is small area that is small a. So if we have to take a point on this plane, so what is the probability that the point lies inside this small capital region, small region? So we can say that the probability of this will be favorable area divided by total area available. And for 3D, this will be same as the favorable volume divided by total volume. This means suppose we have a particular volume like this and we have another volume. This volume is capital V and we have another volume inside this which is small v. So if we have to take a point which should lie inside this capital volume, what is the probability that the point should also lie in between or in this small volume? So we can say that the probability of that will be small v divided by total volume present. So this was the basic example of geometrical probability. We will be given a figure or we will have to draw a figure based on the information given in the question, and then we will have to identify the total volume, total area or total length based on the question that it is based on 3D, 2D or 1D. Then we have to find the probability and we have to find the favorable length, favorable volume or favorable area. So using this we can find the probability or geometrical probability. ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं इस पे. कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सिंपल है, जो भी प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा था उसी पे कॉन्सेप्ट है. अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन इज ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल. बहुत ही सिंपल. सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर और सर्कल की बात हो रही है, इसका मतलब 2D फिगर हमें बनाना पड़ेगा. ओके, हमने एक सर्कल बनाया. एक स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल. इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल का मतलब ये होता है कि देयर इज अ स्क्वायर विच इज टोटली इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल. इफ अ पॉइंट ए इज सेलेक्टेड इनसाइड द सर्कल, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट लाइज इनसाइड द स्क्वायर. तो अभी इस सर्कल को और स्क्वायर को देखते हैं ध्यान से. यहाँ पे इस सर्कल का सपोज सेंटर इज दिस, तो मैंने खुद से अज्यूम किया कि सपोज रेडियस ऑफ द सर्कल इज स्मॉल आर. So we can see this will be r and this will be r. So we can see that the diagonal of the square will be 2r. लेकिन हमें क्या चाहिए, एरिया का बात चल रहा है. एरिया चाहिए तो एरिया के लिए मुझे साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर चाहिए. तो सपोज साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज ए एंड ए. सो वी कैन सी that 2r that is diagonal should be equal to root 2 into a. So we can get a which is equal to root 2 into r. ओके, सो a इज इक्वल टू रूट 2r. एक रिलेशन अपने पास आ गया. नाउ वी कैन सी फेवरेबल एरिया. फेवरेबल एरिया क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कि हमारा पॉइंट किस रीजन में होना चाहिए, स्क्वायर के अंदर हो जाना चाहिए. स्क्वायर के अंदर हो जाना चाहिए. तो फेवरेबल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर. एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर डेट इज रूट 2r का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2r स्क्वायर. नाउ अब हमें चाहिए टोटल एरिया. टोटल एरिया अपने पास रीजन का क्या है, तो मैं बोलूँगा इस सर्कल का एरिया. सर्कल का टोटल एरिया अपने पास कितना है, पाई आर स्क्वायर. ओके, सो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए शुड बी इक्वल टू फेवरेबल एरिया डेट इज 2r स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 अपॉन पाई. सो द फाइनल आंसर इज 2 अपॉन पाई. सिंपल सा क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉइंट इज चूजन
इनसाइड अ सर्कल। ओके, फिर से एक सर्कल अपने पास गिवन है, बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्लोज टू द सर्कमफेरेंस एज कंपेयर टू द सेंटर। ओके, इस चीज़ को ध्यान से समझना है। उसने क्या बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो वाला जो पॉइंट है सेंटर से, द पॉइंट इज क्लोज टू द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस से पॉइंट ज़्यादा क्लोज हो और सेंटर से कम। तो मैं क्या बोलूँगा, सोचो अगर ये वाला चीज़ एक रेडियस है, ये वाला चीज़ अगर एक रेडियस है तो एग्जैक्टली पॉइंट इस रेडियस के मिड पॉइंट पे आ गया तो उसका डिस्टेंस सेंटर से जितना होगा r/2 और सर्कमफ्रेंस से जितना होगा r/2, दोनों इक्वल होगा। बोलेंगे हाँ। इसका मतलब हमें जो पॉइंट चाहिए वो किधर चाहिए, तो मैं बोलूँगा इस रीजन में चाहिए हमें पॉइंट। ओके, इस रीजन में अगर पॉइंट आ गया तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि वो वाला जो पॉइंट है डेट विल बी क्लोजर टू द सर्कमफेरेंस एज कंपेयर टू द सेंटर। ओके, तो ऐसा तो ये सिर्फ एक रेडियस लिया, ऐसा तो इनफाइनाइट रेडियस हो सकता है। मतलब हमें क्या चाहिए बेसिकली, हम लोग r/2 का एक सर्कल ड्रॉ कर दे, इसके अंदर r/2 का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हमें पॉइंट किस रीजन में चाहिए, एक्चुअल में इस रीजन में चाहिए। अगर इस रीजन में पॉइंट आ गया तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, तो इस रीजन का एरिया कितना होगा, तो मैं बोलूँगा फेवरेबल एरिया। फेवरेबल एरिया कितना आने वाला है, तो मैं बोलूँगा बाहर वाले सर्कल का एरिया डेट इज πr² माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया डेट इज πr/2 का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया कर दिया, उससे मुझे इस रीजन का एरिया आ गया। तो यहाँ से ये कितना आएगा, πr² माइनस πr²/4 डेट इज 3/4 πr²। ओके, फेवरेबल एरिया ये है एंड टोटल एरिया कितना है, तो मैं बोलूँगा टोटल एरिया है πr²। तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, तो मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 3/4 πr² डिवाइडेड बाय πr² विच इज़ इक्वल टू 3/4। सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पॉइंट P इज चूजन रैंडम इन बिटवीन 0 से 5। ओके, 0 से 5 एक इंटरवल गिवन है, उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर P का वैल्यू निकाला गया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x² प्लस px प्लस p प्लस 2/4 इज इक्वल टू 0 हैव इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स कब होता है सबको पता होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट आता है b² माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, वी कैन से दैट द रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक का इमेजिनरी रूट कब होगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट आ कितना रहा है, b² विच इज इक्वल टू p² माइनस 4 p प्लस 2/4 इंटू 1। सो दिस इज लेस देन 0 विच इज इक्वल टू p² माइनस p प्लस 2 लेस देन 0 विच इज इक्वल टू p² माइनस p माइनस 2 लेस देन 0। सो if we will put this is equal to p plus 1 into p minus 2 less than 0, so we can see the reason will be from -1 to 2. If we will take p from -1 to 2 then this product will be less than 0. Okay, so but we have given that we will have to take p from 0 to 5। अब हमें p क्या है, 0 से 5 के बीच में ही लेना है। अगर तो 0 से 5 -1, 0 किधर होने वाला इधर, 5 किधर होने वाला इधर। मुझे एक्चुअल में p की वैल्यू किधर से लेनी है, तो मैं बोलूँगा इस रीजन में। एक्चुअल में हमारे पास अवेलेबल जो रीजन है, अवेलेबल जो लेंथ है वो इतना अवेलेबल है, और मैं p की वैल्यू ले कितना सकता हूँ, -1 से 2, और अपने रीजन में कितना, सिर्फ ये वाला। ओके, तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी हमारा होगा ये वाला जो लेंथ है ये कितना है 2 यूनिट, और ये वाला जो लेंथ है ये कितना है 5 यूनिट। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। सिंपल। तो क्वेश्चन क्या था, क्वाड्रेटिक का था, लेकिन सॉल्व कैसे हो गया, लीनियर पर ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी से, डेट इज 1D वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करें जब आप लोग AOD मैक्सिमम मिनिमम निकालने आता है आप लोगों को, ठीक है। ओके,
देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ओके, इफ अ पॉइंट पी इज चूजन इनसाइड द स्फीयर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट आल्सो लाइज इनसाइड द कोन। ओके, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये 3D वाला फिगर बनाया, डेट इज स्फीयर। जब हमने स्फीयर बनाया तो बोला गया इसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड किया गया है। ओके, तो ये मैंने 2D में दिखाया, 3D में कोन कुछ ऐसा होगा, लेकिन हम लोग इसको हटा रहे हैं। ओके, अभी बोला गया अगर सेंटर ये होगा तो सोचो ये वाला विल बी द रेडियस, ये वाला विल बी द रेडियस, ये वाला विल बी द रेडियस। ओके, अब हमें क्या करना है, एक कोन है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। मैक्सिमम कोन तभी आएगा जब मुझे निकालना पड़ेगा पैरामीटर कि उस कोन का लेंथ विड्थ कितना होने वाला है। अगर दिस इज एक्स एंड दिस इज स्मॉल आर ऑफ कोन, तो हमें एक्स आर और स्मॉल आर में वैल्यूज़ या फिर एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। ओके, तो मैंने क्या बोला कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होने वाला है, बताओ भाई वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होने वाला है। तो मैं बोलूँगा वॉल्यूम ऑफ कोन इज π/3 आर स्क्वायर एच, एच के जगह कितना आर प्लस एक्स। ओके, लेकिन हमारा इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, तो मैं बोलूँगा स्मॉल आर एंड स्मॉल एक्स। ओके, अगर एक ही वेरिएबल होता तो मुझे मैक्सिमाइज करना आसान हो जाता है इस फंक्शन को। ओके, तो मैं क्या करूँगा, या तो स्मॉल आर को रिप्लेस करूँगा या तो स्मॉल एक्स को। ओके, तो मुझे एक एक्स और आर में रिलेशन पता है, डेट इज़ ये अगर 90 डिग्री है तो वी कैन सी डेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ कौन सा चीज़ रिप्लेस करना ज़्यादा आसान है, तो मैं बोलूँगा आर स्क्वायर को रिप्लेस करना ज़्यादा आसान है। सो वी कैन से डेट आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू π/3 आर प्लस एक्स एंड आर स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड एज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन को और भी सिंप्लीफाई किया गया, तो π/3 तो कांस्टेंट इसको रहने दिया, दिस इज इक्वल टू आर इंटू आर क्यूब माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ओके, दिस विल बी दी वॉल्यूम। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन वॉल्यूम वाला किस में आ गया, एक्स में। नाउ वी कैन मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, डेट इज हमें क्या करना पड़ेगा, dv/dx निकालना पड़ेगा। dv/ जब dx निकालेंगे तो हमारे पास आएगा π/3 आर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 0, सिमिलरली माइनस आर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इज -2rx, माइनस एक्स आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इज माइनस आर स्क्वायर, माइनस एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन इज -3x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0। dv/dx को इक्वेट किया 0 से, तो हमारे पास क्या आ गया, वी विल गेट माइनस 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 सब हटा दिया, तो यहाँ से आ गया 2rx प्लस आर स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितना, ओके, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया है कि यहाँ पे ये दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू आर स्क्वायर इज प्लस एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स आर स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी r/3। ओके, तो r/3 पे क्या होने वाला है, ये मैक्सिमम होने वाला है। ओके, r/3 पे ये मैक्सिमम होने वाला है। तो जब x की वैल्यू r/3 हो जाएगी तो मैक्सिमम, जब x की वैल्यू r/3 हो जाएगी तो r की वैल्यू कितना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू विल बी आर स्क्वायर माइनस r/3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 9। सो दिस इज 9 - 1 8r स्क्वायर बाय 9। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू π/3 आर स्क्वायर डेट इज 8r स्क्वायर बाय 9 इंटू h इज r प्लस r/3 विच इज इक्वल टू π/3 8r स्क्वायर बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4r/3। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो कितना आ जाएगा, मैं बोलूँगा π/3 8r स्क्वायर बाय 9 इंटू 4r/3 होल डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ से आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 3 से 3 कटेगा, दिस इज 4 से 4 भी कटेगा। सो वी विल गेट 8/27। सो दिस इज 8/27 आंसर।
तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैंने बेसिकली क्या किया, हमने वो वाला कोन का डायमेंशन निकाला जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा स्फीयर के अंदर। तो उसके लिए मैंने किसका यूज़ किया, कैलकुलस का यूज़ किया। पहले वॉल्यूम को x के फंक्शन में रिप्रेजेंट किया एंड देन वी हैव फाइंड dv अपॉन dx। उससे मुझे dv अपॉन dx को इक्वेट किया 0 से, उससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई जिस पे वो मैक्सिमम होगा। तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास कोन का डायमेंशन आ गया। डायमेंशन आ गया अगर कोन का, देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन आ चुका है अगर हमारे पास, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, फेवरेबल वॉल्यूम डेट इज वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम डेट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वहाँ से हमने कैलकुलेट किया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं कैसे है। बोला गया 2 फ्रेंड्स ए एंड बी डिसाइडेड टू मीट एट ए कॉफ़ी शॉप इन बिटवीन 7 PM to 8 PM in the evening. What is the probability that A reaches before A reaches before B but after 7:30 both reaches after 7:30? ये जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो ज़्यादा दिमाग लगता नहीं हमारे पास, बस हमें इतना पता होता है कि 7 से 8 के बीच में मिलना है मुझे। तो मेरे पास एक्चुअल में कितने घंटे हैं या कितना टाइम है, 1 घंटा का टाइम स्लॉट मिला है मुझे। ओके, तो उस 1 घंटे में दोनों कभी भी पहुंच सकते हैं। हो सकता है दोनों 7 बजे ही पहुंच जाए, या हो सकता है दोनों 7:01 में पहुंचे, 7:02 में पहुंचे, या 8 बजे पहुंचे दोनों, या फिर एक 7 बजे पहुंच जाए, वो वेट करता रहे, दूसरा 7:30 बजे पहुंचे, एक 7 बजे पहुंचे, दूसरा 8 बजे पहुंचे, एक 7:30 बजे पहुंचे, दूसरा 8 बजे पहुंचे। मतलब किसी भी टाइम पे वो लोग पहुंच सकते हैं। इतने सारे पॉसिबिलिटी है हमारे पास, बेसिकली वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है कि इतने तरीके से वो लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन हमें वो वाला चाहिए डेट ए बी से पहले पहुंच जाए, ए बी से पहले पहुंच जाए। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली निकालेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं इसको देखना है ध्यान से। हमारे पास 2 लोग हैं ए एंड बी, ए और बी को मैंने मार्क किया, तो मैंने एक डायग्राम बनाया इस टाइप का, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सपोज ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए का टाइम और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी का टाइम। दोनों के पास टाइम स्लॉट यहाँ 7 बज रहा था सपोज, और एग्जैक्टली 1 घंटा है दोनों के पास, डेट इज 60 मिनट है। तो अगर मैं मिनट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये 0 मिनट और यहाँ पे 60 मिनट्स, ठीक है, मिनट्स को लेके चलो तो यहाँ पे 0 मिनट, इसके पास भी यहाँ पे 60 मिनट्स बेसिकली। तो मैं बोलूँगा हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो है ये वाला रीज़न। दोनों इस रीज़न में कभी भी पहुँच जाए, काम चल जाएगा हमारा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी तुरंत समझ में आने लगेगा, देखते हैं। मैंने क्या किया बेसिकली कि ए के पास कितने मिनट थे, 60 मिनट्स थे, वो 60 मिनट्स में कभी भी पहुंच सकता था। बी के पास कितने मिनट्स थे, 60 मिनट्स थे, वो 60 मिनट में कभी भी पहुंच सकता था। ओके, तो मैंने उनका एक डायग्राम ड्रॉ किया या फिर एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया। अब मुझे क्या बोला गया, सोचो अगर y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाया जाए, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, तो यहाँ से दिस इज y इज इक्वल टू एक्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोगों को पता चल जाएगा y इज इक्वल टू एक्स का मतलब ये है कि दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे पहुंचा। सपोज दोनों ने 20 मिनट लिया तो वो यहाँ पे आ जाएगा 20,20। दोनों ने 30 मिनट लिया तो एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा 30,30। मतलब दोनों सेम टाइम पे पहुँच गया कॉफ़ी शॉप, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स। अभी बताओ इस रीजन में कौन बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगा y विल बी ग्रेटर देन x, और इस रीजन में कौन बड़ा होगा, x विल बी ग्रेटर देन y। ओके, तो इस रीजन में अगर x की वैल्यू y से बड़ी है और इस रीजन में y की वैल्यू x से बड़ी है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस रीजन में अगर देखें तो कौन पहले पहुंचा होगा, x की वैल्यू बड़ी है y से, मतलब पहले कौन पहुंचा होगा, y पहुंच गया होगा, है ना। टाइम के हिसाब से देखो, x की वैल्यू मतलब x का टाइम अगर 40 मिनट है तो y का वैल्यू 40 मिनट से कम है, मतलब पहले कौन पहुंचा है। तो इस रीजन में बोलूँगा पहले कौन पहुंचा है, इस रीजन में B रीचेज बिफोर A, और इस रीजन में y की वैल्यू ग्रेटर है x से, y की वैल्यू ग्रेटर है x से, मतलब पहले कौन पहुंचा, x वाला कौन है, A। तो इस रीजन में बोलूँगा
ए रीचेज बिफोर बी। ओके, और इस लाइन पे हमेशा ए एंड बी रीचेज ऑन टाइम। ओके, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए एक्चुअल में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बोला गया ए बी से पहले पहुंच जाए, ए बी से पहले पहुंच जाए तो बेसिकली 1/2 प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि टोटल एरिया कितना होने वाला है इसका, ये स्क्वायर है, तो टोटल एरिया कितना आने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी, टोटल आने वाला है 60 × 60 इस रीजन का एरिया, और इस रीजन का एरिया जब ए रीचेज बिफोर बी, ये वाला रीजन का एरिया, ए रीचेज बिफोर बी मतलब ये वाला रीजन, इस रीजन का एरिया कितना आने वाला है, तो मैं बोलूँगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/2। पहला वाला तो बहुत सिंपल। ओके, सेकेंड वाले को अब देखते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए रीचेज बिफोर बी बट आफ्टर 7:30। अच्छा, 7:30 का मतलब 30 मिनट, 30 मिनट यहाँ पे है, 30 मिनट वाला लाइन ये, और इधर से ये। ओके, दिस इज 30 मिनट, सो दिस इज बेसिकली 7:30। दोनों 7:30 के बाद पहुंचा, लेकिन कौन पहले पहुंचा उसमें भी, तो उसमें भी पहले कौन पहुंच गया, फिर से ए रीचेज बिफोर बी। ए को बी से पहले पहुंचना है और 7:30 के बाद, तो 7:30 के बाद इधर कोई भी कभी पहुंच जाए, तो हमें कौन सा रीज़न चाहिए, बेसिकली ये वाला रीज़न चाहिए होगा हमें। इस रीज़न में क्या होने वाला है, ए बी से पहले पहुंचेगा एंड 7:30 के बाद पहुंचेगा। इस रीज़न का एरिया बताओ, तो ये 30 मिनट है, तो दिस लेंथ इज 30, दिस लेंथ इज अगेन 30, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाने वाला है, बी वाला, नीचे तो 60 × 60 ही होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 30 × 30, दैट इज 1/2, 1/8, ये प्रोबेबिलिटी। ओके, सी पार्ट को देखो, बोथ रीचेज आफ्टर 7:30, दोनों 7:30 के बाद पहुंचे। बताओ ए 7:30 के बाद कब पहुंच रहा है, तो इस रीजन में कुछ भी ले लो, ए हमेशा 7:30 के बाद पहुंचेगा, एंड इस रीजन में कुछ भी ले लो, हमेशा बी 7:30 के बाद पहुंचेगा। तो कौन सा रीजन ऐसा है जिसमें दोनों 7:30 के बाद पहुंचेगा, तो मैं बोलूँगा दिस रीजन, ये वाला रीज़न ऐसा है जिसमें दोनों 7:30 के बाद पहुंचेगा। ओके, तो 7:30 के बाद अगर दोनों पहुंचेगा तो ये वाले रीजन का एरिया तो बहुत इजी है, स्क्वायर का एरिया निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना होने वाला है, नीचे तो 60 × 60, ऊपर क्या 30 × 30, सो दिस इज 1/4। ओके, तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, और इसको हमने ऐसे ग्राफिकली सॉल्व किया तो बहुत ही ईजी हो गया हमारे लिए सॉल्व करना।